Okay, now coming to slightly difficult problem. Although figure इसकी difficult है, अगर आपको समझ आ जाए तो ये ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है. This is the last problem of this chapter. इसके बाद फिर हम आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म कर देंगे और इंशाल्लाह कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. Okay, 5-73 है. You need to determine the force components acting on the ball and socket joint at A, the reaction at the roller at B, and the tension on the chord CD needed for equilibrium of this quarter circle plate. ठीक है, तो आपके पास एक अदद क्वार्टर सर्कल प्लेट है और आपने इसके सपोर्ट रिएक्शंस जो है वो डिटरमिन करने हैं एट A, B and C. A के ऊपर बॉल एंड सॉकेट लगा हुआ है, B के ऊपर रोलर लगा हुआ है और C के ऊपर एक अदद केबल के साथ आपने इसको सपोर्ट किया हुआ है. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. 3 अदद फोर्सेस आप अप्लाई कर रहे हैं. 350 न्यूटन फोर्स, 200 न्यूटन फोर्स जो पॉइंट बी पे भी अप्लाई हो रही है. और चले मैं जस्ट फॉर रेफरेंस अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास पॉइंट ई है तो पॉइंट ई के ऊपर भी ये 200 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई की जा रही है. ठीक है, सवाल है देखो क्लियर हो गया. Okay, so first of all, we need to draw the free body diagram of this quarter circle plate. So the axes are being shown to you. What should be the support reactions at A? Sir, तीनों axes. So ball and socket joint लगा हुआ है. It will give me AX, it will give me AY, and it will give me AZ. ठीक है, तो ये मुझे AX, AY और AZ जो है वो मिल गए एट पॉइंट A के ऊपर. What about point B? What type of reaction shall I get there? Normal. So I'm going to write it as BZ here. उसको आप NB लिख लें या BZ लिख लें, जिस तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें आप कर सकते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम पे और कुछ भी आना चाहिए. Sir, टेंशन आ जाएगी. तो इसको मैं TCD के तौर पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ. दैट इज टेंशन इन द केबल फ्रॉम C to D. Then I have 3 applied forces, 350 Newton, 200 Newton and 200 Newton. So the free body diagram is now complete. इसमें हमें weight के हवाले से नहीं कहा गया था. अगर weight होता तो फिर हमें उसका center of geometry भी या center of gravity दिया होता, हम उसको show कर सकते थे. चूँकि weight का जिक्र नहीं है, so let us not represent weight on this free body diagram. So starting with summation fx equal to 0, आपके पास कौन सी forces x direction में act कर रही हैं? AX, और कोई फोर्स तो नहीं है x डायरेक्शन में. ओके, व्हाट अबाउट द y डायरेक्शन फोर्सेस? AY. Only AY is acting along the y direction, so I'm going to write AY to be equal to 0. It means कि मेरे पास दो unknowns तो जो है वो डिटरमिन कर लिए मैंने through simple inspection of these forces. Okay, moving to the third force equation, summation FZ equal to 0. What are the forces which we can see acting along the z direction here? Sir, AZ, BZ. AZ, BZ और minus 350. Plus TC tension. plus TCD. Anything else? Minus 350. minus 200. minus 350, minus 200, minus 200. तो इसको इकट्ठा ही करके लिख लेते हैं. 350, 750 हो जाएगा. So let it write as minus 750 to be equal to 0. Let me call it as equation number 1. Clear है? Yes, sir. Okay, now coming to the moments equation and starting with summation mx equal to 0. Would AX, AY or AZ create any moment about the x-axis? No, sir. Would BZ would create any moment about the x-axis? Yes, sir. Yes, sir. इसका perpendicular distance 3 है. Clockwise होगा या counter clockwise होगा? Counter clockwise. Counter clockwise. तो इसको positive sign के साथ हमने represent कर लिए. Would TCD create any moment about x-axis? No, sir. Okay. Would this 350 Newton force create any moment about x-axis? No, sir. Would the 200 Newton force acting at point B create any moment about the x-axis? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका perpendicular distance भी 3 हुआ और ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट बनाएगी? Clockwise. Clockwise. तो मैंने इसको नेगेटिव साइन के साथ शो कर दिया. Okay, now coming to the force of 200 Newton acting at point E, would it create any moment about
the x-axis? If yes, what should be its perpendicular distance? चलें, करेगी तो सही। करेगी तो सही। इसको जरा विजुलाइज करें 2D में। कहाँ से देखूंगा मैं? टॉप व्यू से। ये x है, ये y है, ऐसे ही है टॉप व्यू से देखने से जो मुझे एक्सेस नजर आएंगी। यस सर। Yes, sir. ये वो क्वार्टर सर्कल है जिसकी बात हो रही है, ठीक है। पॉइंट Yes, sir. E पे लोकेटेड है समवेयर हियर। ऐसा ही है। यस सर। टॉप व्यू समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसको मैं टॉप से देख रहा हूँ। यस सर। यस सर। Yes, sir. रेडियस Yes, sir. क्वार्टर सर्कल का क्या है? 3 मीटर, 3 मीटर। इट मीन्स कि ये वाली लाइन भी 3 मीटर होगी। ऐसा ही है। यस सर। अच्छा, चलें। अब ये एंगल आपको गिवन है विच इज 60 डिग्रीज। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ई का एक्स से बनता कितना है? वो ये वाला पॉइंट बनेगा ना, ऐसे ही है। यस सर। ये डिस्टेंस आप जरा बताएं ज्योमेट्री देख के क्या होना चाहिए? सर 63 3 into 16 cos थीटा। कॉस होगा, साइन होगा? Sir. I know. साइन साइन। क्योंकि एंगल आपका एक्स से गिवन है, तो अब ये डिस्टेंस वाई के अलॉन्ग है, तो आपके पास 3 sin 60 आ जाएगा, isn't it? यस सर। ये बात हर एक को समझ आ गई है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने इस 200 न्यूटन वाली फोर्स का कैसे निकाला है? Yes, sir. सो अब अगर मैं इसकी मोमेंट देखूं, आपके पास ये 200 न्यूटन फोर्स थी। सो द फोर्स वाज 200 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 3 sin 60 आया। क्लॉकवाइज होगा या काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट? Clockwise. क्लॉकवाइज, तो मैंने इसको नेगेटिव साइन के साथ यहाँ इंक्लूड कर दिया। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? सर क्लियर है सर। ये बताइए साइन 60 और कॉस 60 साइन क्यों लिया और कॉस क्यों नहीं लिया? देखिए, कॉस कंपोनेंट क्या होता है? बेसिकली ये वाला डिस्टेंस जो है ये 3 cos 60 होगा, isn't it? यहाँ से लेके यहाँ तक, यस यस सर। ठीक है। तो साइन आपने तो बेसिकली ये डिस्टेंस लेना है ना कि एक्स एक्सिस से Right, sir, कितना right. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रही है, तो ये 3 sin 60 हो जाएगा। ओके सर, राइट, आगे समझ गया। थैंक यू। चलें, सो किसी को अब तो कोई डाउट नहीं है। जब भी मैंने जिस तरह कहा था, आप अगर 3 डायमेंशन में थोड़ा सा विजुलाइज करने में आपको मुश्किल पेश आ रही है, कन्वर्ट दैट फिगर इनटू 2 डायमेंशंस और फिर आपकी काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। लेकिन अगेन कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा ड्राइंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको विजुलाइज करना पड़ेगा कि 2D में मैं कहाँ से देखूँ तो मुझे ये बेस्ट व्यूज़ का विजिबल होगा, ठीक है। Okay, so this was summation mx. Moving forward to our next equation, which is summation my. क्या ax, ay, az y axis के about moment बनाएगा? ax बनाएगा? No, sir. ay बनाएगा? No, sir. az बनाएगा? Yes, sir. तो AZ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है। क्लॉकवाइज बनाएगा या काउंटर क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise. So we are going to include it with a negative sign here. Okay. Would this 350 Newton applied force create any moment about y-axis? Yes, sir. Perpendicular distance 2 आ जाएगा इसका, और पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। काउंटर क्लॉकवाइज तो आपने पॉजिटिव साइन के साथ इंक्लूड कर लिया। Would TCD create any moment about y-axis? No, sir. Would BZ create any moment about y-axis? No, sir. Would this 200 Newton force at point B create any moment about y-axis? 200 at B, no sir. No. What about 200 at E? Yes sir. वो कितनी बनाएगी? अब 200 तो फोर्स हो गई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? अब मैं फिगर वो रब कर चुका हूँ जो 2D में बनाई थी। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से अब कितना होगा अगर आप दोबारा विजुलाइज कर 3 cos 60 हो जाएगा। ये आपके पास वो फिगर है, ये हमारे पास पॉइंट E था। सो अब y एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली ये डिस्टेंस है, isn't it?
ये 3 है, ये 60 है, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा? 3 cos 60, isn't it? Yes, sir. तो आपने 200 into 3 cos 60 कर लिया विद अ पॉजिटिव साइन, आपके पास इक्वल टू 0 आ गया, हम इसको इक्वेशन 3 कहते हैं। नाउ द सोल्यूशन इज सिंपल, आप इक्वेशन 1 2 3 तीन अननोन्स हैं, तीनों के लिए सॉल्व करें, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज 3 अननोन्स। क्लियर है? Yes, sir. Okay, so with this, our chapter number 5 is now complete. I'm going to stop the lecture here because almost time खत्म होने वाला है। अच्छा, आप में से काफ़ी लोगों ने चूँकि थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, tomorrow we are going to have our quiz number 1 on LMS. आपसे मैंने कोड्स ऑलरेडी शेयर कर दिया है स्टैटिक्स का। All of you are requested to join the statics team on LMS with that code. आपका क्विज exactly 4:30 पे स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 20 मिनट्स का क्विज होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे, और जिस तरह मैंने शुरू में भी रिपीट किया था, द क्विज इज गोइंग टू बी इन अ सीक्वेंशियल मोड। सीक्वेंशियल मोड से क्या मुराद है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का जब आपने राइट चॉइस सेलेक्ट करके आप आगे चले गए तो वापस नहीं आ सकते, ठीक है? तो वंस यू हैव सबमिटेड क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन नॉट गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 1। तो इस बात का ख्याल रखें, थोड़ा सा सुकून के साथ सॉल्व करें। 2 क्वेश्चन हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, आपको एम्पल टाइम मिलेगा 20 मिनट्स। वो अगर कोई किसी को आता है तो वो 10 मिनट में कर सकता है। सो एम्पल टाइम है, कोशिश करें कि सुकून के साथ उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें और सबमिट करें। क्लियर है? कोई चीज़ जो आप पूछना चाहें? सर क्विज का सिलेबस रिपीट कर दें सर। क्विज जो है वो आपका, जिसमें से असाइनमेंट आपने सबमिट करवाई है इक्विलिब्रियम इन 2 डायमेंशंस, उससे आपका क्विज होगा। रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम इन 2 डायमेंशंस, चैप्टर नंबर 5 का जो पहले हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इससे पहले। सर जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम 2 क्वेश्चन आते हैं तो हम पहले मतलब क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमें समझ नहीं आ रहा, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम दोबारा नहीं आ सकेंगे? जी, आप वापस नहीं आ सकेंगे। यस सर, ओके सर। तो इसलिए जो समझ आता है आप सॉल्व करके उसी वक्त लिखें और फिर आगे जाएं। ये भी ना करें कि 20 के 20 मिनट एक क्वेश्चन पे ही लगा दें। टोटल 20 मिनट्स का है, तो ये ना हो कि आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में सारा टाइम लगा दें। अपना टाइम डिवाइड कर लें, 10-10 मिनट, 10 मिनट तक होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तुक्का छोड़ के आगे मूव कर जाएं। एमसीक्यू आपको न्यूमेरिकल को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो चॉइसेस आपको नजर आ रही होंगी 4, उसमें से आपने बेस्ट चॉइस को जो है या करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना होगा। ओके सर, चलें ठीक है। सो एनी अदर थिंग व्हिच यू वांट टू आस्क?